ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آفس کی ریکوائرمنٹ پر اسے بزنس میٹنگ کے لیے اندر پینٹ شرٹ پہن کر جانا پڑا تھا، پر وہ نہیں جانتی تھی اس کی آفس کی بزنس میٹنگ حسان وجدان کے ساتھ تھی۔ حسان وجدان سے اس کا نکاح 2 سال پہلے مجبوری میں ہوا تھا، پھر ان دونوں نے اپنے راستے الگ کر لیے، پر وہ اب تک اسی کے نکاح میں تھی۔ جب وہ میٹنگ کے لیے ہوٹل پہنچے تو حسان وجدان سمیت کئی نظریں اس کے نمایاں حسن پر اٹھی تھیں، جنہیں دیکھ کر اچانک حسان نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ شاید اس رشتے کو بھول گئی تھی، پر ان 2 سالوں میں حسان نے ہر لمحہ اس پر نظر رکھی تھی۔ جب بھی وہ بزنس میٹنگ چھوڑتا اسے اپنے ساتھ زبردستی باہر لے گیا تھا اور زبردستی گاڑی میں بٹھاتے۔ شمع میڈم کو میرے کمرے میں بھیجو، حسان نے اپنی سیکرٹری کو کہا۔ جی صاحب۔ وہ تیزی سے آفس سے باہر نکل گئی۔ حسان نے اپنی مٹھیاں غصے سے بھینچ رکھی تھی، جبکہ آنکھیں بند کر کے کرسی سے ٹیک لگا کر ماضی کی سوچوں میں پھر سے گم ہو گیا تھا۔ میڈم صاحبہ، آپ کو حسان صاحب بلا رہے ہیں۔ سیکرٹری کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے تو وہ اندر سے کانپ گئی، مگر خود پر قابو رکھتے ہوئے محتاط لہجے میں بولی، فی الحال میں گھر واپس جا رہی ہوں، آفس کی ٹائمنگ بھی ختم ہو گئی ہے، صبح آ کر ان سے بات کروں گی۔ مگر صاحب بہت غصے میں لگ رہے ہیں اور یقیناً کوئی ضروری بات ہے۔ سیکرٹری نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، یقیناً وہ ان دونوں کے تعلق سے واقف نہیں تھی۔ جب میں نے تمہیں کہا ہے کہ میں صبح آ کر ان سے بات کر لوں گی، تو میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ چلو جاؤ یہاں سے۔ غصے سے کہہ کر وہ وہاں سے نکل چکی تھی۔ اس قدر شدید ٹھنڈ میں بھی اسے پسینے آ رہے تھے۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے، جس کی سزا اسے مل کر ہی رہے گی۔ اب اسے اسی کی سزا سے خوف آ رہا تھا، لیکن سزا سے زیادہ اسے سزا دینے والے کا ڈر تھا، جس کی نظروں میں وہ گر گئی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اس نے بے ساختہ آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں۔ ایک آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرا اور اس کی قمیض میں جذب ہو گیا۔ میٹنگ کے فوراً بعد اس نے روایتی قمیض شلوار پہن لی تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جس نے دیکھنا تھا وہ تو دیکھ چکا تھا، اور جس نے دل خراب کرنا تھا وہ تو دل خراب کر چکا تھا۔ صاحب جی، وہ تو چلی گئی ہیں، ان کا کہنا تھا انہوں نے جلدی گھر پہنچنا ہے، کوئی ایمرجنسی ہے۔ سیکرٹری نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا تو وہ غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے زور سے ہاتھ میز پر مارا اور چیختے ہوئے کہا، اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے انکار کرنے کی؟ کیا وہ اپنی اوقات بھول گئی ہے؟ تم جاؤ یہاں سے۔ اسی وقت اس نے موبائل اٹھایا اور شمع کی گاڑی کا نمبر اپنے گارڈ کو بتایا، یہ گاڑی سڑک کے بیچوں بیچ روکو، جب تک میں نہیں آتا تب تک اسے وہاں سے ہلنے کی اجازت نہ دینا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے لوکیشن بھی سینڈ کر دو۔ جی صاحب جی، آپ کا کام ہو جائے گا۔ دوسری جانب سے آنے والی آواز سن کر اس کے دل میں سکون اتر گیا۔ شمع نے اپنا دھیان بھٹکانے کے لیے فل آواز میں میوزک لگا لیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کا ذہن بار بار بھٹک کر حسان کی طرف ہی جاتا تھا۔ میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی، اور نہ ہی میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ کچھ سال پہلے اسی انسان نے تو کہا تھا کہ ہم دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور یہ نکاح باقی نکاح کی طرح نہیں بلکہ ایک کانٹریکٹ ہوگا، جو کہ کچھ سالوں بعد ختم ہو جائے گا۔ اس نے جیسے اپنے آپ کو تسلی دی تھی، مگر جب اسے حسان کی آنکھیں یاد آتی تو اسے عجیب محسوس ہوتا تھا۔ یا اللہ، یہ انسان مجھ سے اب کیا چاہتا ہے؟ کیوں یہ انسان پھر سے میری زندگی میں آ گیا ہے؟ وہ خود سے ہی باتوں میں مگن تھی کہ اچانک ہی اس کی نظر سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی پراڈو پر پڑی۔ اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی۔ اس کا دل اس وقت 120 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ لوگ کون ہیں اور اس سے کیا چاہتے ہیں۔ اس نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی سوال کیا، تم کون ہو؟ بیگم صاحبہ، آپ کو ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل حسان صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو یہیں پر روک لیا جائے۔ جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے تب تک آپ کو یہاں سے
आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। तुम पागल तो नहीं हो गए? ये किस तरह की बातें कर रहे हो? और तुम्हारा हसान सर, उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो गुस्से में क्या बोल रही है। गार्ड ने उस वक्त हसान को कॉल पर लिया हुआ था। अपनी बेगम साहिबा के मुंह से अपने लिए इस तरह के इरशादात सुनकर उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, और ये बहुत हैरत की बात थी। वो अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था। बेगम साहिबा को बोलो कि थोड़ी ही देर तक मैं उनके पास पहुंचने वाला हूं, उसके बाद उन्हें सारी हकीकत का पता चल जाएगा। मोबाइल स्पीकर पर था और यह आवाज उसे भी बखूबी सुनाई दी थी, मगर वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई। ये बात तो तय थी कि आज उसने कोई भी काम ठीक नहीं करना था। थोड़ी ही देर के बाद वो अपनी फॉर्च्यूनर में वहां पर पहुंच गया। शमा ने तो गुस्से भरी नजर उसकी कीमती गाड़ी पर डाली और फिर बेजारगी से अपनी मामूली सी मॉडल की गाड़ी को देखने लगी, जिसे उसने बहुत ही मेहनत से खरीदा था। वो अपनी गाड़ी को बहुत पसंद करती थी, लेकिन आज उसे पता नहीं क्यों उससे भी बेजारियत महसूस हो रही थी। फिक्र मत करो बेगम साहिबा, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है। वो उसकी नजरों के मफहूम को समझ चुका था, इसीलिए जल्दी से तफसील पेश की। वो थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई। पता नहीं ये इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। फिर खुद पर काबू पाते हुए मजबूत लहजे में कहा, क्यों आ गए हो फिर से मेरी जिंदगी में? क्या चाहते हो मुझसे? पहली बात तो यह है कि मैं कभी तुम्हारी जिंदगी से गया ही नहीं था। दूसरी और अहम बात यह है कि तुम मेरी बीवी हो, तुम पर हक रखता हूं मैं, और जब चाहे ये हक वसूल कर सकता हूं। बस कर जाओ हसान, खुदा के लिए बस कर जाओ। मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। ना तो मुझे तुम्हारी जात में कोई दिलचस्पी है और ना ही मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का शौक है। तुम्हारे इस धूप छांव के रवैये से मैं तंग आ गई हूं। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। तुम्हारी 2 गलतियां हो गई हैं। पहली गलती तुमने वो लिबास पहनकर की, और दूसरी गलती अब मुझ पर चिल्ला कर रही हो। दोनों की सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। ये कहकर उसने मजबूती से शमा का बाजू पकड़ा तो वो हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी। ये तुम क्या कर रहे हो? थोड़ी ही देर के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूं, उसने अजीब से अंदाज में कहा। शमा को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। वो अपने बाजू छुड़ाने की कोशिश में हलकान हो रही थी, मगर उस जालिम इंसान की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच डालूंगी, उसने चीखते हुए कहा। मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है, जो चाहे करो, लेकिन यहां पर नहीं, वरना गार्ड्स क्या सोचेंगे। हमारे पास अपना कमरा मौजूद है, सब कुछ वहीं पर जाकर करेंगे। मैंने भी तुम्हें बहुत कुछ दिखाना और बताना है, उसने खबासत भरे अंदाज में आंख मारते हुए कहा तो वो जी जान से लरस गई। जब उसे पता चला कि बदतमीजी से बात नहीं बन रही तो वो आंसू बहाने लगी, मगर अब की बार हसान पर उसके आंसुओं का भी कोई असर नहीं हो रहा था। हसान वो निगाहें नहीं भूल पा रहा था जो उसकी बीवी की तरफ उठी थी और फिर उस वक्त तक जमी रही थी जब तक वो उस मीटिंग में मौजूद रही थी। वो बहुत तेजी से ड्राइव कर रहा था। प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाओ, तुम्हें पता है मुझे डर लगता है। फिक्र मत करो छोटी सी लड़की, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वो उसके बड़े से बंगले में पहुंच चुके थे। वो गाड़ी से बाहर निकली तो उसने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन बैरूनी दरवाजे से निकलने में नाकाम हो गई, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े देवकामत गार्ड खड़े थे। उन्हें छोटी बेगम साहिबा को हाथ लगाने की इजाजत नहीं थी और उन पर जिम्मेदारी भी थी कि वो उसे बाहर ना निकलने दें। इसी चीज का उसने फायदा उठाया और साइड से होकर भागना शुरू कर दिया, मगर चंद कदमों के बाद ही हसान दोबारा से उसके सर पर पहुंच चुका था। ये तीसरी गलती हो गई, तुमने यहां से भागने की कोशिश की है, वो अजीब से अंदाज में बोला। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुमसे वादा करती हूं दोबारा इस तरह की गलती नहीं करूंगी। बल्कि तुम ऐसा करो कि तुम मुझे तलाक दे दो, ना ही मैं तुम्हारे निकाह में होंगी और ना ही तुम्हें इस तरह का मसला होगा।
اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، حسان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ شاید اسے اس سب کی امید نہیں تھی۔ آج تو تم نے اپنے منہ سے یہ گندی بات نکال دی، لیکن اگر آئندہ کبھی تم نے یہ بات کرنے کی جرت کی تو تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ تم صرف اور صرف میری ہو، اور اب تم نے ساری زندگی میرے ساتھ گزارنی ہے۔ میرے علاوہ تم کسی کے پاس نہیں جا سکتی، اور نہ ہی کسی اور کے بارے میں سوچنے کی جرت کرو گی، ورنہ تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ وہ عجیب جنونی انداز میں بول رہا تھا۔ وہ اس کا یہ انداز اور یہ لب و لہجہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس معاملے میں اس قدر پوزیسو ہو سکتا ہے۔ ایک وقت تھا جب اس کی خواہش ہوتی تھی کہ حسان اس سے بے تحاشا محبت کرے، اس کا خیال رکھے، اس کے بارے میں سوچے، اس کے معاملے میں پوزیسو ہو، مگر اب وہ وقت چلا گیا تھا۔ 2 سال گزر چکے تھے، اور ان 2 سالوں میں وہ بہت حد تک بدل چکی تھی۔ اس نے لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دی تھی۔ اس نے لوگوں سے رابطے کم کر دیے تھے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ جتنی دوسروں کے ساتھ امیدیں لگائے گی اتنا ہی اس کا دل تکلیف اٹھائے گا۔ اب اسے صرف اور صرف اپنی خوشی سے غرض تھی۔ اس کے لیے وہ تقریباً آدھے سے زیادہ خاندان سے الگ ہو گئی تھی۔ جس دن حسان اسے چھوڑ کر گیا تھا، اس دن وہ بہت بری طرح سے ٹوٹی تھی، بکھر گئی تھی، لیکن پھر اس نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا تھا، اور اب وہ ایک مضبوط عورت بن گئی تھی، یا پھر شاید خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ حسان اس بارے میں اندازہ نہیں لگا سکا۔ مجھے تم سے شدید نفرت ہے۔ تم سن رہے ہو میری بات؟ شدید ترین نفرت ہے مجھے تم سے۔ تمہیں دیکھ کر مجھے گھن محسوس ہوتی ہے۔ میرا بس چلے تو تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لے لوں۔ یہ حسان بھی تمہارا ہے، اور اس کی جان بھی تمہاری۔ یہ کہہ کر وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، اور اس کے ہاتھ اپنی گردن پر رکھتے ہوئے کہنے لگا، لے لو میری جان، تمہیں منع نہیں کروں گا۔ تمہیں میرا خون معاف ہے، بلکہ تمہیں تو میرے خاندان کے 7 خون معاف ہے۔ جس کو چاہو مار دو۔ وہ سرشاری کے عالم میں بول رہا تھا۔ شمع کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس انسان کو خوشی کس چیز سے مل رہی ہے۔ بے بس ہو کر وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگی۔ حسان بھی گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو کہ روتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تمہاری پرانی عادتیں ابھی بھی نہیں گئیں؟ ابھی بھی تم بچوں کی طرح بیٹھ کر روتی ہو؟ میں سمجھ رہا تھا تم مکمل طور پر تبدیل ہو گئی ہوگی، لیکن نہیں، تم تو ویسے کی ویسی ہو، بس خود کو مضبوط ظاہر کر رہی ہو۔ اس کی بات سن کر وہ نفرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ دیکھو، مجھے اس طرح سے نہ دیکھا کرو، ورنہ میرا دل مچلنا شروع کر دیتا ہے۔ تم ان نظروں سے مجھے دیکھ کر اپنی طرف متوجہ کرتی ہو، پھر جب میں تمہارے پاس آتا ہوں تو تمہیں مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کی آواز بدل گئی تھی۔ شمع نے خوفزدہ ہو کر جلدی سے اپنی نظریں جھکا لی تو وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہنے لگا، چلو، باہر بہت سردی ہے، اندر چلو، باقی باتیں اندر جا کر کرتے ہیں۔ مجھے تمہارے اس گھر میں نہیں جانا، بلکہ مجھے تمہارے ساتھ کہیں جانا ہی نہیں ہے۔ وہ پھر سے بولی، جہاں تک مجھے اندازہ ہے تمہاری سب سے چھوٹی بہن اس وقت کالج کے پہلے سال میں ہے، اور تمہارا چھوٹا بھائی اس وقت انجینئرنگ کی ڈگری کر رہا ہے، اور اس کا آخری سیمسٹر چل رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم اپنے بہن بھائیوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی خواہش ظاہر کرو گی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ خبردار، جو تم نے میرے بہن بھائیوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا، میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گی۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ میری بھی ایک شرط ہے، میں تمہارے خاندان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، مگر اس کے لیے تمہیں ہر وقت مجھے دیکھنا ہوگا۔ اب تمہیں اپنی نظروں کے حصار میں صرف مجھے ہی رکھنا ہوگا۔ جن لوگوں سے نفرت کی جائے اور جن کے لیے دل میں بیزاریت پیدا ہو جائے، ان کو دیکھا نہیں جاتا، اور نہ ہی ان کو اپنے دل میں جگہ دی جاتی ہے۔ تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی، اور نہ تم مجھ سے بیزار ہو، تمہیں صرف اور صرف مجھ پر غصہ ہے،
और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द तुम्हारा ये गुस्सा खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें फिर से हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। माजी में जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे एक वजह थी। मैं कभी भी तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, उसने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। मुझे अब तुम्हारे किसी भी झूठ पर यकीन नहीं है और ना ही मैं अब दोबारा तुम पर यकीन करूंगी। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से जा रही हूं क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों के लिए फिक्रमंद हूं। तुम जैसा जालिम और बेहिस इंसान कुछ भी कर सकता है और तुम्हारी जिद की वजह से मैं अपने बहन भाइयों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। उसके लहजे में सिर्फ और सिर्फ नफरत थी, जबकि उसकी आंखों में गुस्से के शोले लपक रहे थे। उसकी बात सुनकर वो फिर से मुस्कुरा दिया। शमा का दिल कर रहा था वो उसकी मुस्कुराहट को नोच डाले, मगर वो खुद बेबस थी। जब वो उसके साथ कमरे के अंदर दाखिल हुई तो एक लम्हे के लिए उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके कमरे की पूरी दीवार शमा की तस्वीरों से भरी हुई थी। पिछले 2 सालों में वो कहाँ गई थी, उसने क्या क्या किया था, ये सारी तस्वीरें उन दीवारों पर आवेजा थीं। ये सब क्या है? उसने हैरत से पूछा। मेरी प्यारी सी बीवी है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हसन ने उसी के लहजे में जवाब दिया। क्या तुम पिछले 2 सालों में मेरी जासूसी करते रहे? वो फिर से गुस्सा हो गई थी। जाहिर सी बात है, तुम मेरी बीवी हो, तुम पर नजर रखना मेरा हक था। अगर तुम पर नजर ना रखता तो क्या मोहल्ले की औरत पर रखता? वो भी चिढ़ते हुए बोला। इन सारी तस्वीरों को यहां से हटाओ। एक नया हुक्म आया था। जी ठीक है मलका आलिया, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। ये कहकर उसने अपने नौकर को आवाज दी, जो चराग के जिन की तरह फौरन हाजिर हो गया। बीबी साहिबा का हुक्म है कि यहां से ये सारी तस्वीरें हटा ली जाएं। जी साहब जी, मैं अभी हटा देता हूं। वो फुर्ती से अपना काम कर रहा था। शमा इस वक्त पूरे कमरे का जायजा ले रही थी, जो कि किसी शहजादे का कमरा मालूम हो रहा था। वहां पर सहूलत की हर चीज दस्तयाब थी। मुझे इस कमरे में नहीं रहना, एक नया हुक्म आया। क्या मतलब है इस बात का? इस कमरे में नहीं रहना? शौहर के साथ नहीं रहोगी तो कहां जाकर रहोगी? हसन ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा। मैंने अभी तुम्हें अपना शौहर तस्लीम नहीं किया। वो भी उसी के अंदाज में बोली। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है? मेरे पास निकाह नामा मौजूद है, गवाह भी सारे मेरे ही थे। अभी उन्हें कॉल करूंगा और वो तुम्हें सारी हकीकत बता देंगे। अगर को तुम भूल गई हो तो तुम्हें याद दिलाने के लिए मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये कहकर उसने अजीब से अंदाज में शमा को देखा। ना चाहते हुए भी वो नजरें झुकाने पर मजबूर हो गई। मुझे इस रिश्ते को कबूल करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हारे पास 2 साल का वक्त था। इन 2 सालों में तुम। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, वो चीखते हुए कहने लगी। बस कर जाओ हसन, बस कर जाओ। तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है, लेकिन ये मजाक नहीं है। ये मेरी जिंदगी है जिसका तुमने खेल तमाशा बनाकर रख दिया। तुम्हें क्या लगता है जब दिल करेगा मेरी जिंदगी से निकल जाओगे और जब दिल चाहेगा मेरी जिंदगी में आ जाओगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने मेरे दिल को पत्थर का समझा हुआ है, या तुमने ये सोच लिया है कि मैं बाकी लड़कियों की तरह तुम्हारे हुस्न और तुम्हारी दौलत पर मरने वाली लड़की हूं? तुम नहीं जानते कि ये 2 साल मैंने कितनी तकलीफ में गुजारे हैं। एक एक रात में कितना तड़पी हूं, कितना रोई हूं, कितना चीखी हूं, लेकिन तुम वहां मौजूद नहीं थे। ना तो मेरी चीखें सुनने के लिए और ना ही मेरी तरफ देखने के लिए। तुम्हें लगा था कि तुम मेरा तमाशा बनाओगे, मुझे छोड़ दोगे तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखो, मैं आज भी तुम्हारे सामने मौजूद हूं। मैं पहले से ज्यादा मजबूत हो गई हूं और तुमसे बहुत नफरत करने लगी हूं। तुम अगर मर कर भी दोबारा जिंदा हो जाओ, मेरे कदमों में गिर जाओ, तब भी मेरे दिल से तुम्हारे लिए नफरत कम नहीं होगी। तब भी मुझे तुम इसी तरह से जहर लगोगे।
ये कहकर वो ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। हसन बहुत ही गौर से उसके वजूद को देख रहा था, जो कि हिचकियों की जद में था, मगर वो कुछ कर नहीं सकता था। जानता था कि यहां पर उसकी अपनी ही गलती है। उसे उस मासूम लड़की के साथ इतना बड़ा खेल नहीं खेलना चाहिए था। उसे समझना चाहिए था कि वो उसके जज्बात की नाकदरी कर रहा है, मगर अब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं था। तुम इसी कमरे में रहोगी जबकि मैं दूसरे कमरे में जाकर रहूंगा। नहीं, मुझे इस जगह पर नहीं जाना जहां पर तुम्हारी कोई भी चीज मौजूद हो। मुझे तुम्हारी मौजूदगी से भी नफरत है। वो फिर से अपने आंसू साफ करते बोली। हसन उस वक्त खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। वो उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त वो लड़की टूटी हुई है, बिखरी हुई है। उसे संभलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, और वो उसे वक्त दे रहा था। रानी, उसने नौकरानी को आवाज दी तो वो तेजी से कमरे के अंदर दाखिल हुई। छोटी बीबी साहिबा को इनके कमरे में पहुंचा दो। वो उसे लेकर हवेली के सबसे खूबसूरत कमरे में आई, जिसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। जब वो अंदर दाखिल हुई तो हैरान रह गई, क्योंकि उसका पेंट और थीम वैसा ही था जैसा उसे पसंद था। ऐसा कैसे हो सकता है कि इत्तफाकन इस घर में इसी तरह का कमरा मौजूद हो? उसने जरा सी ऊंची आवाज में ये बात कही थी तो रानी पुरजोश अंदाज में कहने लगी, ऐसा कमरा यहां पर मौजूद नहीं था। आप तो देख रही हैं कि साहब का ज़ौक कितना खराब है। मुझे तो इस घर से ही कोफ्त महसूस होती है। पूरे घर में काले और ग्रे रंग का पेंट करके साहब ने इस हवेली को बहुत अजीब बना दिया है। लेकिन आपके कमरे में ये जामनी रंग का पेंट उन्होंने खास तौर पर आपके लिए करवाया था। ये कमरा वो पिछले 2 महीनों से बनवा रहे हैं। कल ही ये कमरा मुकम्मल हुआ है और आज आपको ले आए। ये तुम क्या कह रही हो? उसने हैरानगी से उसकी तरफ देखते हुए कहा। लो जी, क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा? अभी मैं शकूरा को बुलाती हूं, वो खुद आपको बता देगी। इससे पहले कि वो शकूरा को आवाज देती, शमा तेजी से बोल पड़ी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन आ गया है। ठीक है बेबी साहिबा, आप आराम कीजिए। मैं भी जाकर किचन के काम निपटा लेती हूं। आपको भूख तो नहीं लग रही? मुझे बहुत शदीद भूख लग रही है। किचन में जो कुछ भी है मेरे पास ले आओ, उसने अजीब से अंदाज में कहा था। क्या सब कुछ ले आऊं? वो भी हैरानगी से बोली। हाँ, सब कुछ ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। जब भी वो टेंशन में होती थी उसे हद से ज्यादा भूख लगती थी, और अब तो वैसे भी उसने यहां पर उस वक्त तक रहना था जब तक कि उसका शौहर नामदार उसे यहां से जाने की इजाजत नहीं दे देता। पता नहीं हसन के जहन में क्या चल रहा था। वो बेचैनी से सोचने लगी। उसके कमरे में मेज लगा दी गई और वहां पर हर किस्म का खाना मौजूद था। सब खाने वो एक एक करके टेस्ट कर रही थी, जबकि रानी उसे हैरत से देख रही थी। पेट भरकर खाने के बाद उसने रानी को बर्तन ले जाने का कहा, जबकि खुद बिस्तर पर गिर गई। थकन की वजह से उसे जल्द ही नींद आ गई थी और वो होशो हवास से बेगाना हो गई थी। उसी वक्त ही कमरे का दरवाजा खुला और हसन छोटे छोटे कदम उठाता कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वो बहुत ही एहतियात का मुजाहरा कर रहा था, कहीं ऐसा ना हो उस जख्मी शेरनी की आंख फिर से खुल जाए। उसे तो अब किसी हद तक उस लड़की से डर भी लगने लगा था, जो गुस्से में बिफर जाती थी। कभी कभार तो हसन को लगता था कि उसे वाकई जान से मार देगी। वो बहुत ही प्यार से शमा का चेहरा देख रहा था। उसने उसके गालों पर हाथ रखा तो वो कुसमसाई। हसन ने जल्दी से अपने हाथ पीछे कर दिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी नींद खराब हो जाए। काफी देर तक वो उसके सिराने बैठा रहा, उसके बालों में उंगलियां फेरता रहा। वो इस हद तक गहरी नींद में थी कि उसे किसी भी चीज का अंदाजा नहीं था। तकरीबन सुबह के वक्त वो उसके कमरे से निकला। जब वो अगले दिन सोकर उठी तो उसकी नींद किसी हद तक पूरी हो गई थी। उसने हसन से कहा, मुझे मेरा मोबाइल दो, मैंने अपने घर वालों को अपने बारे में इत्तला देनी है। मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता, क्या पता तुम फिर से किसी को मदद के लिए कह दो।
या पुलिस को यहां पर बुला लो। वो उसकी पिछली हरकत का हवाला दे रहा था जो कि उसने 2 साल पहले की थी। मैं कोई छोटी या नादान बच्ची नहीं हूं और ना ही कमअकल हूं कि इस तरह की बेवकूफाना हरकत करूंगी, जबकि मैं जानती हूं कि सारी पुलिस को तुमने खरीदा हुआ है। वाह, मेरी ज़ौजा मोहतरमा तो कुछ ज्यादा ही समझदार हो गई हैं और मुझे बहुत हद तक जानने भी लगी हैं। ये कहकर उसने मोबाइल उसके हवाले किया। उसने अपनी अम्मी जान को यही बताया था कि वो एक ज़रूरी मीटिंग के सिलसिले में कुछ अरसे के लिए शहर से बाहर गई है, जल्द ही वापस आ जाएगी। तुम्हें अपनी माँ को सच बताना चाहिए था कि तुम इस वक्त उनके दामाद के घर में मौजूद हो। अगर तुम कहो तो तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे घर चल सकता हूं। मुझे यकीन है कि तुम्हारी माँ मुझे कबूल कर लेगी, क्योंकि जितना मैं प्यारा हूं और जितनी मेरे पास दौलत है, कोई भी इनकार नहीं कर सकता। उसने गरूर भरे अंदाज में कहा तो उसकी बात सुनकर वो अजीब से अंदाज में हंसने लगी। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा खानदान हुस्न और दौलत को देखकर इंसान की पहचान करता है, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। हमारे खानदान में ये देखा जाता है कि मर्द का ज़र्फ कितना है और वो किस हद तक अपनी औरत से मोहब्बत करता है, किस हद तक उसकी हिफाजत करता है। जो मर्द अपनी औरत को बीच रास्ते में इस जालिम दुनिया में छोड़कर चला जाए, उसको मर्द नहीं समझा जाता। उसकी बातें सुनकर हसान का चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से की वजह से लाल हो गया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उसे खामोश करवा दे, मगर यहां पर उसकी अपनी भी गलती शामिल थी, इसीलिए वो खुद चुप हो गया और तेजी से वहां से चला गया। शमा ने मुस्कुराते हुए उसे बाहर निकलते हुए देखा। हसान, तुम्हें तो मैं अपने लफ्जों से ऐसा घायल करूंगी कि तुम बहुत जल्द मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, उसने जैसे खुद से वादा किया था। वो पूरा दिन उसने बाहर गुजारा था। पूरा दिन वो खुद से सवाल जवाब करता रहा, खुद से लड़ता रहा और खुद को समझाता रहा कि बहुत जल्द वो लड़की ठीक हो जाएगी, बहुत जल्द वो उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने में कामयाब हो जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो उसके दिल से वो नफरत निकाले जो कि उन 2 सालों में उसकी जात का हिस्सा बन गई थी। उसे वो शमा अभी तक भूली नहीं थी, जो कि बहुत मासूम और भोली भाली लड़की थी, दूसरों की गलतियों को माफ करने वाली, दरगुजर करने वाली। अगर कोई उसके साथ ज्यादती करता था तब भी वो उसे माफ कर देती थी। वो कोई भी बात अपने दिल में नहीं रखती थी, मगर ये शमा तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसने तो एक एक बात याद रखी हुई थी। जब वो रात के वक्त घर वापस आया तो उसने हाथ में शमा का पसंदीदा खाना उठा रखा था। वो इस वक्त लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी और साथ पॉपकॉर्न खा रही थी। उसके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट फैली थी, क्योंकि उसका पसंदीदा शो चल रहा था। उसकी यही छोटी छोटी खुशियां थीं। उसे देखकर हसान मुस्कुराने लगा, मगर जब वो हसान की तरफ मुतवज्जो हुई तो उसके चेहरे के तासुरात फिर से बदल गए। वहां पर बेजारियत छा गई। क्या तुम माजी को नहीं भूल सकती? क्या तुम मेरी गलतियों को माफ नहीं कर सकती? हम लोग अच्छे मियाँ बीवी की तरह भी तो जिंदगी गुजार सकते हैं। तुमने कभी मुझे अपनी बीवी तस्लीम नहीं किया, तो मैं कैसे तुम्हें अपना शौहर तस्लीम कर लूं? देखो, मैं अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। मैं तुमसे माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं। तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर देती? आखिर तुम इतनी जिद्दी क्यों बन गई हो? क्यों अपने साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर रही हो? मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए मोहब्बत तो छुपी हुई है। तुम बस इस बात का एतराफ नहीं कर रही। तुम सिर्फ और सिर्फ एक बार मुझ पर यकीन करके देखो। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। हसान साहब, ये वादा आपने मुझसे एक बार पहले भी किया था और आप मुझे 2 साल के लिए रोता हुआ छोड़कर चले गए थे। मजीद नहीं, अब मैंने आप पर यकीन किया तो मैं अपने साथ जुल्म करूंगी। हम अपनी एक छोटी सी फैमिली भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे यकीन है उसके बाद सारी चीजें खुद ब खुद सेटल हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंसने लगी।
इतना हंसी कि उसकी आंखों में पानी आ गया। आप ये फैमिली पहले भी स्टार्ट करके गए थे, मगर फिर क्या हुआ? ना तो वो बच्चा बचा और ना ही। ये तुम क्या कह रही हो? वो जल्दी से अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। मैं ठीक कह रही हूं। आपके जाने के बाद मैं उम्मीद से हो गई थी। उसके बाद मैंने आपसे राब्ता करने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर आपसे मेरा राब्ता नहीं हो सका। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे घर वालों को इस निकाह के बारे में मालूम नहीं था। मेरे पास कोई दोस्त नहीं थी कि जिससे मैं अपनी परेशानी शेयर करती। मैं बहुत टेंशन में चली गई। मैं डिप्रेशन की मरीजा बन गई और उसी टेंशन और उसी डिप्रेशन की वजह से मैं अपना बच्चा खो बैठी। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे आज भी लगता है कि मैंने अपने हाथों से उसका कत्ल किया है, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें मेरा भी कसूर नहीं था। मैं खुद छोटी थी, कम उम्र थी, नादान थी। वो इस वक्त छोटे बच्चों की तरह रो रही थी। उसे एक लम्हे के लिए भी सब्र नहीं आ रहा था। वो वक्त शमा नहीं भूल सकती थी। वो वक्त बहुत तकलीफ में गुजरा था। जहां तक हसान का सवाल था तो उसने सिर्फ और सिर्फ उसकी ज़ाहिरी हालत देखी थी। वो नहीं जानता था कि शमा अंदर से किस कदर टूट फूट का शिकार है। वो उसके कदमों में गिर गया। वो खुद फूट फूट कर रोने लगा। ये बात उसे मालूम नहीं थी। अगर उसे पता होता तो वो कभी भी उस लड़की को उस तकलीफ में ना छोड़ता। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मगर मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी हिफाजत के लिए किया है। मेरी वजह से तुम्हारी जान को खतरा था, इसी वजह से मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया। मगर तुम मेरी बात का यकीन करो, तुमसे दूर होकर भी मैं तुम्हें नहीं भूल पाया था। तुम हर वक्त मेरे जहन पर छाई रहती थी। हर वक्त मैं तुम्हें ही सोचता रहता था। मैंने अपने गार्ड्स को भी तुम्हारी हिफाजत के लिए रखा हुआ था। तो मेरी अम्मी के नाम जो पैसे आते थे वो तुम भेजते थे। उसकी बात सुनकर शमा ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा तो वो हाँ में सर हिलाने लगा। क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी थी। ये कैसी जिम्मेदारी हुई हसान? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा। वो खुद भी फूट फूट कर रोने लगी। दोनों इस वक्त छोटे बच्चों की तरह रो रहे थे। तुम तो मुझे कहते थे कि तुम मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करते हो। अगर तुम मुझसे एक लम्हे के लिए भी दूर हुए तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। कहाँ गई बहुत मोहब्बत कि तुमने 2 साल मेरी गैर मौजूदगी में गुजार दिए। वो फिर से माजी को दोहराने लगी थी। उसका माजी बहुत ही तकलीफ दे था। जब वो 18 साल की थी तब उसने कॉलेज में दाखिला लिया था। वो अपने खानदान में पहली लड़की थी जो कॉलेज तक गई थी, वरना सब लड़कियों की मैट्रिक के बाद शादी हो जाती थी। क्योंकि वो बहुत लायक थी और हर क्लास में टॉप करती थी। मैट्रिक में भी उसने आला कामयाबी हासिल की और पूरे ज़िले में टॉप किया, जिसकी वजह से उसे स्कॉलरशिप मिल गई थी और हुकूमत की तरफ से हर महीने वजीफ़ा मिलता था, जिससे उसके आने जाने के अखराजात पूरे हो रहे थे। वो कराची के एक पोश इलाके में अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार रही थी। किसी किस्म का कोई मसला परेशानी नहीं थी। उसके माँ बाप उससे बहुत मोहब्बत करते थे। वो भी यही कोशिश करती थी कि कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे उसके माँ बाप की इज्जत पर फ़र्क आए। उसके छोटे बहन भाई थे जिनका वो बहुत ख्याल रखती थी। अगर ये कहा जाए कि उनके घर में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ थीं तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। उसकी ज़िंदगी में तब्दीली उस वक्त हुई जब हसान ने उसकी ज़िंदगी में कदम रखा। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा गैंगस्टर भी था। उसे मालूम हुआ था कि कराची के उस पोश इलाके में बहुत सी गैर कानूनी सरगर्मियां हो रही हैं, मगर वो लोग उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह से उनके गैंग को बदनाम कर रहे हैं। वो अपने आदमियों के साथ वहां पर पहुंच गया। उन लोगों को उठाने के बाद अब उसका रुख अपने मेंशन की जानिब था कि अचानक ही उसकी गाड़ी उस इलाके से थोड़े ही फासले पर खराब हो गई। तमाम गार्ड्स को वो पहले भेज चुका था। अब वो बिल्कुल अकेला था। हजारों तरह के वसवसे और ख्याल उसके जहन में आ रहे थे।
उसे लग रहा था ये सब कुछ उन लोगों ने किया है कि अचानक उसे दूर से आती हुई उसकी नजर शमा पर पड़ी। आज उसकी वैन नहीं आई थी जिसकी वजह से वो पैदल निकल आई थी। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था, जबकि उसकी सांस बुरी तरह फूली हुई थी। वो यूं तो नकाब करती थी, लेकिन उस दिन शदीद गर्मी की वजह से उसने नकाब उतारा हुआ था। चूंकि वो इलाका सुनसान था, वहां से किसी के आने जाने का इम्कान नहीं था, इसी वजह से वो बेफिक्र होकर चल रही थी। लेकिन जब उसकी नजर थोड़े ही फासले पर गाड़ी के करीब खड़े हसान पर पड़ी तो वो बुरी तरह से बौखला गई, जबकि हसान तो पहली ही नजर में उसका दीवाना हो गया था। उसने आज से पहले इस कदर मासूम और पाकीज़ा हुस्न कभी नहीं देखा था। वो लड़की 16 साल की मालूम हो रही थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता उसके पास गया और उससे सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कोई तमहीद नहीं बांधी थी। उसका लहजा शमा को काफी अजीब लगा। वो उसके करीब से होकर गुजरने लगी थी कि हसान ने उसका बाजू मजबूती से पकड़ा और उसे अपने सामने खड़ा करते हुए गुस्से से कहने लगा, मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रहा हूं, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह का सवाल करने वाले? वो भी उसी के अंदाज में बोली। वाह, तुम तो काफी बहादुर मालूम होती हो। अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं कौन हूं तो शायद तुम दोबारा मेरी तरफ नजर उठाकर भी ना देख सको। अगर तो तुम्हें लगता है कि मिस्टर, मैं तुम्हारी हकीकत जानने के बाद तुमसे खौफजदा हो जाऊंगी तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं अपने रब के अलावा किसी के बाप से नहीं डरती। वो बेखौफ लहजे में बोली। बिलाशुबा वो अच्छी, मासूम और भोली बाली थी, लेकिन जहां पर वो नाइंसाफी या जुल्म देखती थी वो आवाज उठाती थी। एक झटके से उसने अपना बाजू छुड़वाया और वहां से चली गई, जबकि उसके लहजे ने हसान को तैश दिला दिया था। आज से पहले किसी ने भी उससे इस अंदाज में बात नहीं की थी। अगले दिन जब वो कॉलेज से बाहर निकली तो वो पहले से ही बाहर खड़ा था। उसके करीब आया और उससे कहने लगा, मुझे बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? वो हैरानगी से पूछने लगी। मतलब साफ है, अब ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं। कितने पैसों में अपना सौदा करोगी? वैसे भी मैंने तुम्हारे घर के हालात देखे हैं। जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है तुम लोगों के लिए, लेकिन अगर तुम मेरे साथ जाने की हामी भरो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, शमा का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह की बात करने की? वो हलक के बल चिल्लाई थी। आसपास खड़े सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है लड़की, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। उसकी कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी और वो उस वाक़ये को भूल गई थी। वो शुक्र अदा कर रही थी कि वो इंसान दोबारा उसकी जिंदगी में नहीं आया। थोड़े ही अरसे के बाद उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जिसकी वजह से वो अपने घर वालों को छोड़कर हॉस्टल में शिफ्ट हो गई थी। वो तकरीबन महीने के बाद अपने घर वालों से मिलने के लिए आती। हर रोज रात को वो घर में बात करके अपनी खैरियत बता दिया करती थी। चूंकि उसके मामा बाबा उस पर भरोसा करते थे, इसी वजह से वो अपनी बेटी की तरफ से मुकम्मल तौर पर बेफिक्र थे। एक दिन जब वो यूनिवर्सिटी से निकली तो एक काले रंग की गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। कुछ अनजान आदमी निकले जिन्होंने उसे गाड़ी में धक्का दे दिया और उसे बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो वो एक आलीशान कमरे में मौजूद थी। थोड़े ही फासले पर वही शख्स बैठा था जिसको कुछ अरसा पहले उसने थप्पड़ मारा था। उसे देखकर वो खौफ से लरजने लगी और उसे माफी मांगते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे यहां से जाने दो, मेरे साथ जुल्म मत करना। तुमने मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की थी, जिसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। उसकी बातों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए हसान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो वो उसके कदमों में गिर गई और उसे फरियादें करने लगी
نہ جانے ایسا کیا تھا جو وہ اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا اور پھر اس رات وہ اس سے اپنا حق بھی وصول کر چکا تھا۔ ساری رات وہ روتی رہی، تڑپتی رہی، مگر اس انسان نے اس پر ترس نہیں کھایا۔ صبح تک اس کا غصہ کافی حد تک کم ہو گیا تھا اور اب اس کو یہ چھوٹی سی لڑکی بہت پیاری لگنے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو غلط طریقے سے حاصل کیا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس نے اس لڑکی کا دل توڑ دیا ہے۔ اس نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ وہ بہت جلد اس کو منا لے گا۔ وہ اسے واپس ہاسٹل چھوڑ آیا۔ اس دن کے بعد شمع کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ اب اس کی زندگی میں ایک ایسا شخص آ گیا تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تو وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ ہر روز اسے لینے کے لیے آ جاتا اور اسے گھمانے لے کر جاتا۔ جب وارڈن نے سوال کیا تو اس نے نکاح نامہ وارڈن کو دکھایا، جس سے وہ خاموش ہو گئی، اور اس طرح سے شمع کو بھی آسانی ہو گئی تھی۔ وہ اسے شاپنگ کرواتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کرتا تھا، اس کی خواہشات کو تکمیل تک پہنچاتا تھا۔ ویکینڈ وہ اسی کے پاس اس کی حویلی میں ہی گزارتی تھی، مگر وہ اس بات سے خوفزدہ تھی کہ اگر اس کے والدین کو پتہ چل گیا تو وہ کیا جواب دے گی۔ ایک دن اس نے حسان کے سامنے جب اپنے خیالات کا اظہار کیا تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے والدین سے میں خود جا کر بات کروں گا، بلکہ مجھے صرف ایک ہفتہ دے دو، ایک بہت ضروری کام ہے۔ جیسے ہی وہ کام ختم ہو جائے گا میں تمہارے ماں باپ سے بات کروں گا۔ اس کی بات سن کر وہ مکمل طور پر خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنے لبوں سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا۔ وہ اس انسان پر یقین کرنے لگی تھی، مگر جب ایک ہفتہ گزرا تو اس انسان نے ایک عجیب سی بات کر دی۔ دیکھو، ماضی میں تم نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، جس کا انتقام میں نے لے لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کا مداوع بھی کر دیا ہے۔ اتنی شاپنگ تم نے اپنی ساری زندگی میں نہیں کی ہوگی جتنی شاپنگ تم نے ان تھوڑے سے دنوں میں کر لی۔ اس کے علاوہ بھی تم مجھ سے جتنے پیسے مانگو گی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، مگر میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ یہ نکاح بے مقصد ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں اب ہم دونوں میں کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ رہے، اور نہ ہم دونوں میں مزید اس طرح کا کوئی تعلق قائم ہو۔ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو شمع کو اپنے کانوں میں گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک تو وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، مگر پھر دونوں کے راستے بدل گئے۔ وہ اپنی راہ چل پڑا اور شمع اپنی راہ چل پڑی، مگر اکیلے سفر کرنا شمع کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ ایک ہی مہینے کے بعد اسے پتا چلا کہ وہ امید سے ہو گئی ہے۔ خوف اور ٹینشن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی۔ اسی وجہ سے اس نے اپنا بچہ بھی کھو دیا تھا۔ اس کے دل میں حسان کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی تھی، جس نے اس کے جذبات کا مذاق بنا کر رکھ دیا تھا، جبکہ دوسری طرف حسان کی بھی مجبوری تھی۔ دراصل اسے ایک بہت اہم مشن پر جانا تھا، اور اس مشن میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ وہ شمع کو اسی لیے خود سے دور کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ وہ لڑکی اس کے لیے اہمیت رکھتی ہے تو وہ اس لڑکی کو اس کی کمزوری بنا کر استعمال کریں گے۔ 2 سال کے لیے وہ ملک سے باہر چلا گیا، لیکن ان 2 سالوں میں اس نے اپنے گارڈز کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ شمع کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھیں۔ ہر مہینے اس کی ماں کے اکاؤنٹ میں ایک موٹی رقم چلی جاتی تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ رقم کہاں سے آ رہی ہے۔ شمع خود حیران ہوتی تھی۔ کئی بار اس کے ذہن میں حسان کا خیال آیا تھا، مگر پھر وہ اس خیال کو جھٹک دیتی تھی، کیونکہ اس انسان نے جتنی بڑی زیادتی اس کے ساتھ کی تھی، اس کے بعد شمع کو امید نہیں تھی کہ وہ اس پر کسی بھی قسم کا احسان کرے گا۔ 2 سال گزر گئے۔
2 सालों के बाद उसने एक मल्टी नेशनल कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दी। एक बहुत जरूरी मीटिंग थी जिस पर उसने जाना था। पैंट शर्ट पहनना जरूरी था। ये लिबास पहनकर वो वहां तो गई, लेकिन हसान को देखकर हैरान रह गई। हसान का भी हाल उससे मुख्तलिफ नहीं था। वो उसकी इज्जत थी, उसकी बीवी थी, कि ऐसे उस लिबास में वो दूसरों के सामने जा सकती थी। इस बात को बुनियाद बनाकर वो उसे फिर से अपने घर ले आया और अब उसके कदमों में बैठा हुआ था और उससे अपने किए की माफी मांग रहा था। ये बात सच थी कि पिछले 2 सालों में शमा बहुत तकलीफ में रही थी, मगर उसके बावजूद भी वो उस इंसान को नहीं भूल पाई थी। जितनी मोहब्बत हसान ने उसे दी थी वो भूलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसे वो रातें याद आती थीं जब हसान उसके हॉस्टल में आ जाता और आधी रात के वक्त वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते। हंसते खेलते खाना खाते थे, घूमते थे। बहुत सी यादें थीं जिन्हें भुलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। हसान उसके कदमों में बैठा और उससे माफी मांग रहा था। मैं वादा करता हूं दोबारा कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मगर खुदा की कसम उठाकर कहता हूं जो कुछ भी किया तुम्हारी हिफाजत के लिए किया। तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकता था? मुझे तुम्हें सच बता देना चाहिए था। तुमसे मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मगर मेरी बात का यकीन करो कि दोबारा कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो बहुत ही गौर से उसके चेहरे को देख रही थी जिसने 2 साल पहले उसे छोड़ दिया था, मगर अब उस इंसान पर यकीन करने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वो भी तंग आ चुकी थी। तो मुझसे वादा करो कि कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, वो उसकी आंखों में देखते हुए मासूमियत से पूछने लगी। तो हसान ने एक झटके से अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अब मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं। मेरे घर में रिश्ता लेकर आओ। मेरे अम्मा अब्बा से सीधे तरीके से बात करो। ठीक है, लेकिन अब तुम मेरे पास आओ। हसान ने उसे पकड़कर अपने पास खींचना चाहा तो वो तेजी से पीछे हट गई। जब तक शादी नहीं होगी तब तक तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। अगले ही दिन वो अपने माँ बाप के घर चली गई थी और हसान वादे के मुताबिक शाम के वक्त ही रिश्ता लेकर आ गया था। 1 महीने के बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। माजी में उसने जितनी भी तकलीफें काटी थीं उसका मदावा हो गया था। हसान उससे हद से ज्यादा मोहब्बत करता था, उसका ख्याल रखता था। उसके दिल से हर किस्म की गलत फहमी दूर हो गई थी और हर किस्म का खौफ भी उसका पीछा छोड़ चुका था। कहानी